Hello students, how are you? I hope you are like good बच्चों. So today's topic is essay writing. So essay writing को लिखने के लिए ऐसे क्या होता है बच्चा, क्यों लिखते हैं essay writing और ऐसे हम किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं. So essay can be of different types बच्चे. Let's begin. So descriptive ऐसे होता है बच्चा, narrative ऐसे होता है और imaginative भी ऐसे होते हैं. So descriptive essays क्या होते हैं बच्चा, are those which consist of descriptions of like places, things, animals, plants, towns, countries और famous buildings के बारे में describe करते हैं. Narrative essays होते हैं बच्चे जिसमें involve होता है the narration of events और a series of events के बारे में जो बताते हैं. Like such essay may consist of historical stories or legends, biographics, the lives of great people, incident in a person's life, incidents or natural disasters like earthquake, flood, journeys and real or imaginary stories. Next is imaginative essay क्या होते हैं बच्चा, are those that express the thoughts and feelings of a person. जो किसी पर्सन की फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं उनको इमेजिनेटिव एसेज बोला जाता है. लाइक यू एज द राइटर्स हैव टू इमेजिन योरसेल्फ इन अ सर्टेन सिचुएशंस व्हिच मे और मे नॉट बी फैमिलियर टू यू. Autobiographics, the stories of a person's life written by the person herself or himself, could also be imaginative essays. So an essay has three parts. First होता है बच्चा उसका introduction part, second one we can call them body part and third one we can say conclusion part. So तीनों के तीनों parts very important है बच्चा essay के लिए. So first हमारा introduction part होता है. जो introduction है, the introduction should be brief and should be made up of a few short sentences in a very short paragraph or two. It would be good if you could make it a little different from how others may begin their essays. Second हमारा body part होता है बच्चा. Body part के अंदर main part को include किया जाता है, main part of the essay and contains the thoughts of the writers. They could consist of a few paragraphs. Next है बच्चा third कंक्लूजन, जिसमें बिल्कुल कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है, क्या निचोड़ है उस चीज़ का, देन कंक्लूजन में ऐड किया जाता है. लाइक सम अप द एसे. इट शुड बी ब्रीफ एंड मेड अप ऑफ अ फ्यू शॉर्ट सेंटेंसेज इन अ सिंगल पैराग्राफ. ट्राई टू मेक इट मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग. आपको उसको मीनिंगफुल बनाना होता है, इंटरेस्टिंग बनाना होता है कंक्लूजन को. Here is a specimen of essay on the topic of my favorite train journey. So my favorite train journey के ऊपर है ये essay हमारा. तो देखते हैं कैसे लिखा हुआ है. Let's begin. यहाँ पर आपको सारी चीज़ें नोटिस करनी है बच्चा. इंट्रोडक्शन पार्ट भी, बॉडी पार्ट भी और कंक्लूजन पार्ट भी. ओके, सो लेट्स बिगिन. Train journey have always fascinated me. I'm always up for a journey by train, and if you can travel by train with your friends, oh what a fun. Every year autumn break brings a short spell of freedom for us at school. With the first term exams over, it gives us respite from hard work for about a week or 10. So ट्रेन जर्नी बच्चे हमें काफ़ी क्या बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड करती है. मुझे ट्रेन पे सफ़र करना, जर्नी करना बहुत ज़्यादा पसंद है. और अगर ट्रेन में आप सफ़र कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ तो वाओ व्हाट अ फन. सो हर साल ऑटम ब्रेक जब आता है तो शॉर्ट स्पेल ऑफ फ्रीडम फॉर अस एट स्कूल, जब हमें थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है स्कूल से, फर्स्ट टर्म एग्जाम जैसे ही ख़त्म होते हैं तो हम क्या करते हैं, इट गिव्स अस रिस्पाइट फ्रॉम हार्ड वर्क. और हार्ड वर्क से जैसे ही हम निकलते हैं अबाउट अ वीक और 10 days, and it also brings in news about the school exertion. All these years in September, right from class 1st, I have wanted to go on one of those long winding train journey with my friends, but mom and dad have never allowed me to go for these outstation trips with my friends as they thought I was too teeny. However, this year I have convinced them that I am grown up enough to take care of myself for a few days. Mom and dad have decided to let me go to Udaipur this year with my friends. So यहाँ पर बच्चे वो ऐसे के बारे में बता रहा है कि किस तरह से उसका जो मन होता था, स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए तो ये चीज़ें पहले से वो सोचता था. इवन ऑल ऑफ दिस ईयर सेप्टेम्बर राइट फ्रॉम क्लास 1st से ही कि मैं कहीं बाहर जाऊँ, विंडिंग ट्रेन जर्नी में जाऊँ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, लेकिन मम्मा डैड मुझे अलाउ ही नहीं करते थे जाने के लिए. इतना कि आप जाओ आउट स्टेशन ट्रिप्स के
ऊपर फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था, वो ऐसा समझते थे। लेकिन इस साल तो मैंने उनको कन्विंस कर लिया है कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं कुछ दिनों तक अपना ख्याल रख सकता हूँ। तो मम एंड डैड ने डिसाइड किया कि हाँ, वो मुझे भेज सकते हैं उदयपुर के लिए विद माई फ्रेंड्स। आई वॉज लकी टू गेट द विंडो सीट। इट वॉज अ डे जर्नी ऑफ अराउंड 12 hours and there was a lot to see outside the window. The sight of green fields, long roads and small sand hills fascinated me, and I remained glued to the window for most part of the journey. Before we went to sleep at night, we played dumb, Kaides and Antakshari, which was super fun. I just wished the journey would never come to an end. However, before we even realized we had reached the Udaipur station. So मैं बहुत लकी था, मुझे विंडो सीट मिली, क्योंकि विंडो सीट से तो बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलते हैं ना बच्चा। तो वो यही बता रहे हैं कि विंडो से मैंने बहुत सारा आउटसाइड की चीज़ें देखी, जो मुझे ग्रीन फील्ड नज़र आ रहे थे, लॉन्ग रोड्स एंड स्मॉल सैंड हिल्स जो थे वो मुझे काफ़ी फैसिनेटेड कर रहे थे। और वहाँ पर मैंने विंडो सीट पर बैठे बैठे पूरा जर्नी के पार्ट का मज़ा लिया। और रात को जो हम गेम खेलते थे, जिसमें अंताक्षरी खेलते थे, हम कोई भी कार्ड्स वगैरह खेलते थे, वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर फन होता था। तो मैं विश करता था ये जर्नी कभी एंड हो ही ना। लेकिन फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम उदयपुर पहुंच चुके थे, उदयपुर स्टेशन आ चुका था। एज आई वेंट अराउंड फ्रॉम साइड टू साइड इन द सिटी ऑफ लेक्स, आई ड्रीम्ड ऑफ द ट्रेन जर्नी बैक टू Delhi. Our train journey back home was also as much fun. We saw the landscape change from sandy to a greener one as we approached Delhi. So अब यहाँ पर हमने क्या देखा, कहाँ पहुँचे बेटा, अराउंड फ्रॉम साइड टू साइड इन द सिटी ऑफ लेक्स में पहुँच गए थे एंड ट्रेन जर्नी में बैक टू दिल्ली। और हमारा जो ट्रेन जर्नी थी अब ऐसे ही हमें घर पर भी पहुँचाने वाली थी। तो मैं वहाँ पे लैंड्सकेप देखता हूँ किस तरह से चेंज होते हैं, वो सैंडी से लेकर ग्रीनर से लेकर और अप्रोच करते हैं दिल्ली की तरफ। एज द ट्रेन रोल्ड इनटू द हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन इन दिल्ली, और दिल्ली में हम वापस आ चुके थे और हमारी ट्रेन कहाँ पर पहुँच चुकी थी बच्चे, हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर दिल्ली में। आई सो टू हैप्पी फेसेस ट्राइंग टू लुक फॉर मी, मम एंड डैड. आई वॉज हैप्पी टू सी देम. I got off the train with the intention of telling mom and dad everything about Udaipur and about my two very special train journeys with my friends. Before I exited the station, I looked back once more at the train and thanked it in my heart for such a memorable experience. तो जैसे ही अब दिल्ली में पहुंच गए, स्टेशन पर पहुंचते हैं तो किसके दो प्यारे प्यारे टू हैप्पी फेसेस को देखता है, वो थे उसके मम्मा एंड डैड के, और वो उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। और जो ट्रेन में मम्मा एंड डैड के साथ सारी जो भी उदयपुर में उन्होंने एंजॉय किया था सब चीज़ें शेयर करता है उनके साथ जर्नी के बारे में, और दोबारा बहुत एक्साइटेड होता है उस स्टेशन को देखकर जहाँ पर वो थैंक बोलता है उस ट्रेन को भी, उस स्टेशन को भी, जो एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस उसके साथ जुड़ गया था। तो यहीं पर बच्चे ये ऐसे फिनिश होता है। आप देखते हैं रीड एंड राइट के अंदर राइट ऐसे ऑन दीज टॉपिक्स। सो यहाँ पर बच्चे कुछ टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और इन टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसे लिखने हैं, लाइक अ विजिट टू द जू, द सिटी आई लाइक द मोस्ट, द पर्सन आई लव द मोस्ट, माई कंट्री इंडिया, माई फेवरेट बुक, माई ग्रैंड पेरेंट्स। सो ये ऐसे बच्चे इसी तरह से इनके बॉडी पार्ट, जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, और लास्ट में कंक्लूजन को अवॉइड नहीं करना है। और ये ऐसे प्रॉपर तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से यू हैव टू राइट योर सेल्फ स्टूडेंट्स।